السلام علیکم ناظرین، سندھ بار کونسل کے وائس چیئرمین ذوالفقار خان جلبانی، کراچی بار کے صدر عامر سلیم، ایڈوکیٹ وہاب بلوچ سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہیں، صبا سمرو و دیگر کی جانب سے، جس میں محمد خان شیخ، جمن کا ایڈوکیٹ جمن پنور و دیگر کی جانب سے آج سٹی کورٹ میں سکرڈ سانے کے خلاف جو ہے بہت بڑا احتجاج کیا گیا اور پریس کانفرنس کی گئی۔ وکلاء نے بڑی تعداد میں احتجاجی مظاہرے میں شرکت کی۔ وکلاء کا مطالبہ تھا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں پولیس کی جانب سے سکرنڈ میں 5 افراد کو فائرنگ کر کے شہید کیا گیا ہے۔ شہید جو ہیں اس کے علاوہ زخمی بھی کیے گئے ہیں، جو زخمی جو ہیں اس وقت کراچی، نواب شاہ و دیگر ہاسپٹلوں میں اپنا زیر علاج ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس فوری طور پر نوٹس لے کے جوڈیشل کمیشن تشکیل دیں، اور ان وکلاء نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ حاضر سروس ہائی کورٹ کا جج جو اس پہ مشتمل ہو۔ ذوالفقار خان جلبانی ایڈوکیٹ جو کہ سندھ بار کونسل کے ممبر بھی ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ فیکٹ فائنڈنگ کرائی جائے۔ اس واقعے کی بہت ہی بڑا سانحہ ہوا ہے، بے گناہ لوگوں کو قتل کیا گیا ہے، گاؤں والوں کو، اور پولیس ان کے گھر میں داخل ہوئی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو کہ کچھ 2 ویگو گاڑیاں تھیں اس پہ بھی جو ہے موجود تھے، سول ڈریسز میں بھی موجود تھے بندے، وہ گھروں میں داخل ہوئے، جو کہ نہایت ہی ناجائز ہے۔ اور وکلاء نے اعلان کیا کہ ہم فوری طور پہ تمام سانے کے جو متاثرین ہیں ان کو نواب شاہ، سکرنڈ، حیدرآباد ہائی کورٹ، اس کے علاوہ جو ہے کراچی ہائی کورٹ، سپریم کورٹ میں فری لیگل ایڈ دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا، انہوں نے سکرنڈ واقعے میں جو ملوث افراد ہیں ان کو گرفتار کرنے کی بھی اپیل کی، اور وکلاء نے کہا کہ یہ FIR ان کی یعنی گاؤں ماڑی جہاں پہ وقوع ہوا ہے ان متاثرین کی مرضی سے FIR درج نہیں کی گئی، پولیس نے اپنی مرضی سے اپنا FIR درج کی ہے۔ گاؤں ماڑی جلبانی جہاں پہ یہ وقوع ہوا اس کے بارے میں وکلاء کیا کہتے ہیں، آئیے۔ شام کے 4 بجے 4 پولیس کی موبائلیں، 2 ویگو گاڑیاں کلرڈ شیشوں کے ساتھ سندھ کے گاؤں ماڑی جلبانی کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور رینجرز کی گاڑیاں ان کے علاوہ تھی۔ یہ 4 پولیس کی تھی، 2 ویگو تھی، اور 5 یا 6 گاڑیاں رینجرز کی اس کے علاوہ تھی، جنہوں نے آ کے گاؤں ماڑی جلبانی کو پہلے وارڈن کیا، ان کے داخلی اور خارجی راستوں کو بند کیا، وہاں پہ لوگوں کو اندر جانے اور باہر نکلنے سے منع کیا، اور وہاں کے ایک غریب مسکین کاشتکار جس کا نام الاداد ہے، اس کے گھر کے اوپر اندر داخل ہوئے، تو الاداد اس کے بیٹوں نے کہا کہ بھائی آپ کو جو آدمی چاہیے، جس کی آپ کو تلاش ہے، جو وانٹیڈ ہے، آپ اس کا نام بتائیں، ہم پورے گاؤں میں سے آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ مگر انہوں نے ان کی ایک بات نہیں سنی اور اندر گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے اندر گھر پہ داخل ہونے سے منع کیا اور مزاحمت کی، تو ان اہلکاروں نے اپنے ہتھیاروں کے منہ کھول دیے، ان نہتے بے گناہ معصوم پاکستان کے شہری
सिंध के शहरी गरीब, मिस्कीन, लाचार, बेयार और मददगार बगैर किसी हथियार के उन लोगों को गोलियों का निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 5 आदमी मौके पे शहीद हो गए। 6 आदमी, जिनमें 2 बच्चे, 2 खवातीन और 2 बुजुर्ग शहरी हैं, वो जख्मी हुए, जो इस वक्त कराची और नवाबशाह की हॉस्पिटल्स में जख्मी अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं। और उन लोगों की FIR दर्ज करने के लिए कोई तैयार नहीं था। मैं ये भी रिकॉर्ड पे लाना ज़रूरी समझता हूँ कि जिस गांव पे चढ़ाई की गई उस गांव का नाम है माड़ी जलबानी, और उसी गांव के एन सेंटर के अंदर वहाँ पे पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन का नाम है माड़ी जलबानी। वो सेंटर में पुलिस स्टेशन है, चारों तरफ जो है वो गांव के घर मौजूद हैं। जब वहाँ पे पुलिस जाती है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जाते हैं, तो थाने पे रिपोर्ट नहीं करते कि भाई हम किस मकसद के लिए आए हैं, किसकी गिरफ्तारी चाहते हैं, कौन वांटेड है, और जाकर लोगों के घर में घुसकर गोलियों की बारिश शुरू कर देते हैं। अब जब ये कार्रवाई मुकम्मल करके लोगों को शहीद करके लोगों को जख्मी करके वापस चले जाते हैं, तो ये गांव के लाचार और मिस्कीन आदमी जिनके पास एम्बुलेंस के पैसे नहीं हैं कि वो अपने जख्मियों को वहाँ से हॉस्पिटल शिफ्ट कर पाएँ, वो रक्षा के ऊपर और चंगची के ऊपर वो अपनी चारपाइयाँ डालते हैं, उसके ऊपर वो जो लोग शहीद हो गए हैं उनकी लाशें उठाते हैं, अपने जख्मियों को उन चारपाइयों के ऊपर डाल के वो सकरंद सिविल हॉस्पिटल के अंदर इलाज के लिए ले आते हैं। आपकी तवज्जो से ये एक सवाल पूछता हूँ कि जनाब, जंगल में भी कानून होता है, इस मुल्क के आइन और कानून की वायलेशन जब कानून नाफिज कराने वाले इदारे खुद करेंगे तो उसके खिलाफ आवाज़ कहाँ जाए? अगर ऐसी इतला है, हम आपकी बात को 2 मिनट के लिए दुरुस्त तस्लीम करते हैं। हमारे निगरान वजीर दाखिला साहब, क्या आपने वहाँ पे कोई कानूनी चाराजोई की, उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज की, मुतलका थाने में आपने आमद करवाई, वाक़े के बाद आपने रवानगी कराई? अगर ऐसा ही हुआ है, लोगों ने मुज़ाहमत की है, आपके बंदे कहते हैं कि ज़ख्मी हुए हैं, तो क्या आपने उन ज़ख्मियों की FIR वहाँ मुतलका थाने में कराई? अगर नहीं कराई तो इसके पीछे ये नज़र आता है कि आपने हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश की है। और जो लोग इस वाक़े के अंदर शहीद हुए हैं, मैं आपकी तवज्जो से इस दुनिया के सामने ये रखना चाहता हूँ कि उनके खिलाफ आज तक एक सिंगल कंप्लेंट नहीं है, कोई उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई उनके खिलाफ FIR नहीं है, कोई चालान नहीं है। बेगुनाह मासूम पाकिस्तान के शहरियों को कत्ल करना और उसके बाद उनकी कत्ल की FIR दाखिल ना करना, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हम ये वाज़े कर देना चाहते हैं कि ना तो ये 70s का दौर है, ना ये 80s का दौर है, जब MRD की तहरीक में चाड़ियों के गांव के ऊपर नौशेर फिरोज में चढ़ाई की जाती है, मासूम लोगों को शहीद किया जाता है। ये दौर वो दौर नहीं है। ये 90s का दौर भी नहीं है, जब टंडो बावल के अंदर चढ़ाई की जाती है, वहाँ पे लोगों को शहीद किया जाता है। ये 2023 है, यहाँ पे
मीडिया आज़ाद है, सोशल मीडिया का दौर है। लोग घर से सैकड़ों चैनल्स टीवी के देखकर बाहर निकलते हैं। हर आदमी के हाथ में कैमरा है, हर आदमी जो है सोशल मीडिया को अपलोड करता है। तो आप ये मत समझें कि ये जो हालात हैं, ये जो वाक़यात हैं, ये छुप जाएंगे, और ये जो कत्लेआम है और ये जो लोगों को ज़ख्मी किया गया है, ये जो लोगों पे चढ़ाई की गई है, ये जो मासूम शहरियों का कत्लेआम हुआ है, इसके खिलाफ कानूनी चाराजोई नहीं होगी। ज़रूर होगी हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, सिंध के लिए एक मशल राह है, उसका नाम है माई जिंदो चांडियो। जिस माई जिंदो ने ये साबित कर दिखाया कि अगर आप हक पे हैं, आप सच पे हैं और आप इंसाफ चाहते हैं और आप पुरअमन जदोजहद करते हैं, तो कातलों को सज़ा ज़रूर मिलेगी इंशाअल्लाह। मेरे ये जो भाई दाएं हाथ पे बाएं हाथ पे खड़े का कोई नुमाइंदा पहुंचता है, ना वहाँ की सिविल इंतज़ामिया, असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर पहुंचता है। और वहाँ पे इतनी खौफ और दहशत की फिजा कायम थी कि कोई उनका पुरसान हाल नहीं था, कोई उनकी मदद करने को तैयार नहीं था, कोई उनसे ये पूछने के लिए तैयार नहीं था कि भाई हुआ क्या है। नतीजतन कमज़ोर लोग, बेपहुँच लोग, जिनकी कहाँ तक कहीं भी रसाई नहीं है, वो अपनी लाशें उठाकर नेशनल हाईवे के ऊपर आगे बैठ जाते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। और इंसाफ की तवक्का के लिए उन्होंने इब्तदा के लिए जो डिमांड रखी वो ये रखी कि हमारी FIR दर्ज की जाए। एक रात गुजर जाती है, दूसरा दिन गुजर जाता है, कोई इंतज़ामिया, कोई एहलकार ना पुलिस की जानिब से आता है और ना ही रेवेन्यू की जानिब से आता है। शाम को डिप्टी कमिश्नर नवाब शाह आते हैं और कहते हैं कि आपके मुतालबात हम मान लेंगे, आप यहाँ से धंधा ख़त्म कर दें और हम आपके लफ्ज़ बलफ्ज़ जो आपका मौक़िफ़ है हम उसकी FIR करवाएंगे। आप मेहरबानी करें, यहाँ से आप अपनी लाशें उठा लें और रास्ता खोल दें। उनकी यकीन दहानी के ऊपर धरने के शरका जो हैं वो अपनी लाशें उठाते हैं और पुलिस स्टेशन माड़ी जलपानी जहाँ पे ये वक़्वा हुआ था वहाँ पुलिस स्टेशन पर पहुँचते हैं और उनकी FIR जो है उनकी मर्जी के खिलाफ नामालूम अफराद के खिलाफ दाखिल कर दी जाती है। उनसे अब उसी दिन हमारे वज़ीर आला सिंध और हमारे निगरां सूबाई वज़ीर दाखिला का बयान आता है कि वहाँ पे दहशतगर्द खुदकश बमबार छुपे हुए थे, जिनको कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तार करने गए, मुज़ाहिमत हुई और ये वाक़या पेश आया।